और लोगों को ऐसे भी लगता है ना कि ओके अगर ये आईपीएस ऑफिसर है तो मैं इनसे काम की ही कुछ बात करती हूँ। दे से इमेज ट्रैवल्स फास्टर देन यू। हाँ। एक वर्ड याद रखो कि वर्दी का जी। उसमें अगर इतना सा भी दाग लग गया जी, ना जी। तो वो तुम पे नहीं पूरे डिपार्टमेंट हाँ पे जी। है। इट इज़ Yeah. क्वाइट टफ। Yeah, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट Hmm. अटेम्प्ट और एग्जाम दैट एनीबॉडी Yeah, वुड yeah. थिंक ऑफ। Exactly. जहाँ आप मेंस के जब जवाब लिखते हो उससे Yeah. पता चल जाता है आपकी Hmm. पर्सनैलिटी क्या, आप क्या सोचते हो। ह्यूमन रेस इज बेस्ड ऑन होप What do you think makes a good relationship? and art has always been the foundation of big revolutions and that man did this and did this to me ऐसे हाथ जोड़ के नीचे झुका and I was like my tenure is Wow. satisfied. हेलो मैम। Hello. हमारे पॉडकास्ट द स्मॉल टाउन शो में आपका स्वागत है। Thank you so much. मैम आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ऐसे रोज़ रोज़ नहीं होता कि आईपीएस ऑफिसर हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हैं। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था आपको बुलाने का और फाइनली आज हो रहा है, तो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट रियली मीन्स अ लॉट। Thank you so much, yaar. And I had thought that I'll come early, but then because of the time वो तो है। मैम मैं आपसे सबसे पहले ना एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में अभी भी आया। जैसे आप कभी जैसे जॉब में नहीं हो और आप बाहर जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ और उनके अगर फ्रेंड्स आ रहे हैं तो आई थिंक सबके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहता होगा कि ओके शी इज़ एन आईपीएस ऑफिसर। और आप कभी चिल मूड में हो, फन मूड में हो, तो आपको कभी लगता है कि अरे यार खुल के बात कर लो ना, क्या है इतना। क्योंकि वो होता है ना कि सबके माइंड में कभी कोई रहता है कि ओके हाँ आईपीएस ऑफिसर तो है, तो आपको कभी लगता है कि यू मिस आउट ऑन सम फन या कुछ ऐसे? Yeah, there are like lot of things that we miss out on. Yeah. So especially when you meet your old friends, then you are like you want to meet them in a very candid way. But कभी वो बीच में आ जाएगा कि वो प्रोफेशन वाला ना, so generally they are not कि restricted that you are an IPS officer, but वो अपना कोई प्रॉब्लम जरूर सुना देंगे। अच्छा। Then it is like यार मैं तो कहाँ आउटिंग के लिए आ रखी थी। फिर जॉब वाली बात आ जाती है। But then the real friends who have always been there when I was preparing and struggling, they don't change. Yeah. That is one thing. And secondly, when you get in services, you also get friends who are in the service. So when you meet them specially, you're always talking about services. You don't talk about personal life at all. Exactly. So otherwise अब हम लोग ना ऐसा ट्रेन हो जाते हैं कि when you make friends and you get to know that यहाँ पर एक personal corner मिलेगा या नहीं मिलेगा. Because the mind works like that. That if you want an escape and you can talk to someone personally, then only you connect like that. कि यार she is like a sister, this one is like a friend. So that way is. और लोगों को ऐसे भी लगता है ना कि ओके अगर ये आईपीएस ऑफिसर है तो मैं इनसे काम की ही कुछ बात करती हूँ, गवर्नमेंट की बात करूँगी, इम्प्रेस हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे भी सोचते हैं लोग। Yeah, no, friends don't do that. Friends don't, yeah. But generally, when you're sitting in a restaurant or you're going out and people notice that either she's talking on phone or she has her gunner or driver around, then they'll be like randomly talking about things which I may connect with to just take that attention. तो वो होता है कभी कभी, but that's also like a little funny. Exactly. ओके मैम आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि ब्यूरोक्रेट क्या होते हैं, किन किन ऑफिसर्स को हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं और उनका जॉब क्या होता है? See, bureaucracy basically is a word that comes from public administration. So Max Weber, who was a sociologist and he's also a thinker in public administration, this person he developed this word bureaucracy. Bureau मतलब एक desk and जो उस desk के पीछे बैठ के काम करते हैं वो bureaucracy कहलाया जाता है. It's a very broad term now. Anybody from like some people say that from top to bottom, the whole government system comprises of bureaucrats. And it includes not only the administrative people, that is IAS, PCS, the clerical staff and administration, but it also includes other government jobs like which are more specific in nature, like the police department. And हम लोग भी सब bureaucrats हैं, है ना? तो but one thing common with bureaucracy in India is that we are not specialist completely. We are generalists. That means if we head any department, we'll be competent enough to head it in a way. So that ways you have to be multitasking. So India mein bureaucracy is a very big organization and it is meant for public work and its penetration in the ground in the country is huge. So it's a big system where the desk of the governments work for different departments and it includes everybody. Now all the government officers
from top to bottom. They are bureaucrats. Yeah. Just above them are political bosses. So the political bosses are not part of bureaucracy. Okay. They are part of the legislative system. Okay. So this is mota the structure of the whole thing. Okay, okay. Yes. And right now you're the ADC to the governor, right? Yes. आप ADC के बारे में कुछ बता रहे थे, उसका नाम का फुल फॉर्म और उसकी हिस्ट्री बता रहे थे, आप मेरे को वो शेयर करेंगे? Yeah. So ADC stands for Aide de Camp. Yeah. It's a French word. Yeah. So I was saying that जब ब्रिटिश टाइम में गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे, so they were the one who used to manage the provinces and the principalities. वो जब चलते थे, क्योंकि पूरा एरिया देखते थे, तो ऑफिसेज ऐसे नहीं होते थे कि कहीं पे स्ट्रक्चर एक ऑफिस का है वहाँ बैठ गए हैं. दे यूज्ड टू ट्रैवल आल्सो. व्हेन दे यूज्ड टू ट्रैवल दे यूज्ड टू पुट टेंट्स एंड कैंप्स. सो वो कैंप का उनका जितना भी काम होता था, बिकॉज द गवर्नर जनरल वुड बी द हाईएस्ट पर्सन एंड ही वुड नॉट गो एंड डू द वर्क, बट द होल वर्क वुड बी डन बाय ऑफिसर्स हु वर फ्रॉम द आर्मी मेजरली, बिकॉज पहले तो आर्मीज हुआ करती थी. द पुलिस सिस्टम केम वेरी लेटर, लाइक द दरोगा सिस्टम एंड अदर थिंग्स. एंड दैट फ्रॉम देयर एड डी कैम्प से आपका ब्रिटिश सिस्टम से इंडिया में वो वर्ड आया एड डी कैम्प का. नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैज 3 forces under him. So he is the supreme commander of the 3 forces, defense forces. उन defense forces से उनके AD camp आते हैं. But then in the state, the governor is the head of the whole state. और governor के 2 ADCs होते हैं, एक होते हैं IPS officer और एक डिफेंस सर्विस से होते हैं. आर्मी बैकग्राउंड या कुछ? नॉट एग्जैक्टली आर्मी. उत्तराखंड प्रीडोमिनेटली आर्मी स्टेट है, तो हियर वी हैव आर्मी. बट अगर आप कोस्टल एरियाज में देखो तो नेवी से बहुत लोग हैं. और अब तो एयरफोर्स से भी आने लगे, लाइक करंटली उत्तर प्रदेश में एयरफोर्स हैं. जी जी, ओके ओके. एंड यू आर द फर्स्ट फीमेल ADC? I am right now the only female Only, ADC. yeah. Not the first though. Okay. But it's very rare because from the defense forces they don't send. अभी तक नहीं भेजा है कोई भी lady ADC. And even in many states police officers don't become ADCs. तो हमारे यहाँ there was 1 or 2 lady officers earlier also. So we have a very, what should I say, women empowerment oriented jobs everywhere. So now I'm right now the only ADC, women lady ADC. Yes. मैम, जब भी कोई IPS या IAS को देखता है तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये आता है कि इन्होंने UPSC क्रैक किया है. और आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगता है UPSC क्रैक करना. तो कैन यू टेल कि हाउ हार्ड इज इट टू क्रैक UPSC? मतलब it is quite tough. It is one of the toughest attempt or exam that anybody would think of. Exactly, But then it's a passion and it requires so much of dedication. It's like ऐसा नहीं है कि UPSC सबसे टफ है. I would say that even if you want to be anybody in any field और आपको वो एक्सेल करना है तो दिन रात की मेहनत है और कई सालों की है. बस वो ये कि वो मेहनत आप कहीं और ना लगा के आप UPSC की प्रिपरेशन में लगा रहे हो. So it is exactly like that. So the paper is said to be one of the toughest paper in the world, not only in the country. And a lot of candidates sit. So the point is that in India, when I was sitting for the paper, around 19 lakh people had applied. तो वो जो competition का level है वो बहुत बढ़ जाता है. And then if you see the syllabus is vast because it is not only for one kind of service. ऐसा नहीं है कि सिर्फ IAS IPS निकल रहे हैं. रेवेन्यू भी यहीं से आते हैं, लाइट सर्विसेज आती है, फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस. सो इट्स अ पेपर विच जनरली पीपल से एनीथिंग अंडर द स्काई can come in your exam. So it is like that. It takes a lot. It takes a lot. मैम, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे होते थे? क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को फेस करते हैं कि टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. कब पढ़ना है, कब ब्रेक लेना है, और कभी कभी डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाते हैं. तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे रहता था? See, when you start for UPSC preparation, I would say कि UPSC की प्रिपरेशन के कई तरीके होते हैं, बट आपको अपना तरीका बनाना पड़ता है. बिकॉज जैसे मैंने बताया कि इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे एग्जाम्स हैं, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, कुछ वीकनेसेस होंगी जो सामने वाले की नहीं होंगी. एंड ऑल्सो बिकॉज यू डोंट हैव टू राइट एन आंसर एग्जैक्टली लाइक समबडी एल्स, यू डोंट हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ द हर्ड लाइक द मासेस, एंड यू हैव टू शो दैट आई एम अ लिटिल डिफरेंट. तो आपको उस तरीके से अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. एज फार एज टाइम मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड, आई थिंक इफ समबडी इज वर्किंग देन ऑल्सो दे कैन मैनेज टाइम, बट इट इज़ मोर अबाउट द क्वालिटी. आप कितनी देर बिता रहे हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा टाइम बिता रहे हैं. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी वीकनेस है अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट,
देन आंसर राइटिंग करके कोई फायदा नहीं है. सो सम पीपल हैव कि नहीं आंसर राइटिंग करो दे लूज कॉन्फिडेंस बिकॉज द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड द पीयर प्रेशर दे टेल देम कि अरे ऐसा करो. So then you lose the confidence. You have to be really close to your own heart. You have to do the SWOT analysis. That is what is your strength, weakness, what is your difficulties that are going to come. According to that, you arrange the time. लाइक जैसे मुझे ऐसा लगता था कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी सबसे बड़े सब्जेक्ट हैं, तो मैंने सबसे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी आई टुक अराउंड 6 months to finish these 2 subjects. But after that I didn't touch that subject. So that was my strategy. Now for public administration I read it for 3 years. It was my optional. But for exam I didn't read it at all. That was my strategy. But some people they do it like a timetable कि एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए, फिर उसके बाद अगले दिन कुछ और पढ़ लिया. So whatever suits you. So this is one exam where you have to prove that you can be an organizer, a manager, a leader, and still be dedicated. So there is no training which will afterwards also there is no training which will teach you all this. You should have the potential of it. So basically when you think like a bureaucrat already, when you think that I have to like a office go and study and manage my time and know what I have to study and how I have to study, then it becomes easier for you to crack the exam. अगर डर में या किसी प्रेशर में आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे then it won't work. और मैम आपने कोचिंग भी नहीं ली थी, तो इट इज़ पॉसिबल कि ज़रूरी नहीं है कोचिंग लेना है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि नो इवन इफ यू टेक कोचिंग ना, तो कोचिंग के बाद भी ऐसा होता है कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम देना ही पड़ता है. कोचिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करता है ये बताने में कि सिलेबस क्या है. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस इन इटसेल्फ इज़ वेरी डिफिकल्ट. कुछ लोग खाली एनसीईआरटी किताब पढ़ के बैठ जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि नहीं भाई हम तो हर जीएस पेपर में भी किसी स्पेशलिस्ट से फाइट कर रहे हैं, है ना. तो देन लेटर ऑन यू कम बैक फॉर अ ईयर और 6 months, यू हैव टू सिट एंड डू योर ओन प्लानिंग एंड स्टडी. कोचिंग में आपको ऐसा नहीं है, कई लोगों को कोचिंग बहुत सूट करती है इन द सेंस कि कई लोगों को दूसरे का पढ़ाया हुआ समझ आता है, कईयों को मोटिवेशन मिलता है दैट यू आर विद अदर पीपल, सो यू आर एबल टू डिस्कस. सो दोज थिंग्स वर्क फॉर सम पीपल. बट फॉर मी आई वाज लाइक जो मैं खुद पढ़ती थी और खुद समझती थी मुझे वही समझ आता था. सो दैट वाज वन रीजन आई डिडंट गो टू कोचिंग. एंड देन ऑल्सो आई फेल्ट कि कोचिंग में जितना आप समय लगाते हो आने जाने और पढ़ने में, उससे ज़्यादा आप खुद भी कर सकते हो. But also for me, it was a little different because I thought I wanted to prove a point that if I want to be a bureaucrat, I don't need somebody else guiding me. Because what will happen later on? I have to have this practice of using my own brain for my preparation, for my decision making, and later on also. That helps you a lot for interview also. Exactly. मैम ब्रेक लेना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब जब हम कुछ किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि बस इसमें लगे रहें, ब्रेक नहीं लें, और उससे मेंटली फिजिकली बहुत ड्रेन हो जाते हैं स्टूडेंट्स. तो अकॉर्डिंग टू यू ब्रेक लेना कितना इम्पोर्टेंट है? Break is the most beautiful thing. Ma'am, exactly. I mean, if you feel like and whenever you feel like, take break. जैसे मैं क्या करती थी कि जैसे पढ़ती थी और दिन भर में मुझे नींद आ रही है कभी, तो मैं उसी समय सो जाती थी. बट द पॉइंट इज दैट यू ओनली हैव टू स्टडी, टेक अ ब्रेक, स्टडी, टेक अ ब्रेक, स्टडी, टेक. देयर इज नो अदर थिंग. यू डोंट सोशलाइज, यू डोंट गो टू फ्रेंड्स मच. थोड़ा बहुत बात कर ली फोन पे. यू डोंट डू इंस्टा, यू डोंट गो फॉर शॉपिंग. यू मिस सो मेनी वेडिंग्स एंड फंक्शंस. तो वो जब आप सब मिस करते हो तो आप पे 2 ही चीज़ें बचती हैं, पढ़ना, ब्रेक लेना. बट देन व्हेन यू हैव टू टेक ब्रेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू बी वेरी लॉयल टू योर ओन सेल्फ. कि अगर आप ये सोच रहे हो कि ब्रेक तो लेना सही बनता है बिकॉज मैम ऑल्सो सेड कि ब्रेक लेना है, दैट डजंट वर्क. यू हैव टू हैव दैट फीलिंग कि अब मैं मतलब दिमाग से थक चुका हूँ तो मुझे ब्रेक लेना है. फिजिकली यू डोंट गेट अपसेट और टायर्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बिकॉज इट्स नॉट अ physical training. It's a mental thing, but you really have a lot of to read, analyze, keep it in your memory. तो एक बार के लिए लगता है नहीं बस हो गया. Take a break, go out. You can also go out, take a ride, go running, or sleep, or speak to a friend over phone. But other things you don't do during the break. कि आप गए पार्टी कर लिया, ये कर लिया, वो नहीं हो पाता है because एक जो आपका रिदम है वो ब्रेक हो जाता है. So the break is also only to enhance your preparation. Exactly. मैम आपने अगर कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो
उसकी सोच क्या रहनी चाहिए कि सिविल सर्विसेज में जाने से पहले, क्योंकि काफ़ी लोग पावर हंग्री होते हैं, वो पावर को देखते हैं, उसके लालच में जाते हैं कि ओके इतनी पावर रहती है। कुछ लोगों को लाल बत्ती बड़ी अट्रैक्ट करती है कि ओके मेरे को इसमें घूमना है तो इसलिए मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है। तो आपकी क्या सोच थी जब आप क्योंकि आपने कहा था यू हैव टू थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट, तो आपकी क्या सोच थी और किन लोगों को आपको लगता है कि जाना चाहिए और किन लोगों को नहीं जाना चाहिए उस सोच को लेकर? सी जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं शुरू में तो हमें पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं होती, मुझे भी नहीं थी कि वंस यू कम टू द सर्विसेज व्हाट विल बी योर जॉब प्रोफाइल और व्हाट चैलेंजेस यू विल फेस, ये सारी बातें नहीं पता होती हैं बिल्कुल भी। बट हाँ 2-3 चीज़ें होती हैं दिमाग में, जैसे किसी को लगता है कि मुझे पावरफुल बनना है, किसी को कुछ लगता है। सो बीइंग पावरफुल इज़ नॉट रॉन्ग, बट एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो ड्यूरिंग अ डिस्कशन विद यू दैट पावर किस चीज़ के लिए चाहिए आपको ना, इट हैज़ टू बी एन अथॉरिटी पावर फॉर पीपल हु कांट स्पीक फॉर देमसेल्फ, हु नीड जस्टिस, हु नीड एम्पावरमेंट, देन ऑब्वियसली इट इज़ फाइन कि अगर आपके अंदर एक आ गया कि हाँ मुझे सोसाइटी में कुछ करना है, कहीं पहुंचना है। एंड ऑल्सो आई थिंक यूपीएससी इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन who are looking for an avenue, बट उन्हें लगता है कि नहीं हम ऐसी फैमिली से नहीं है कि हम बहुत बड़ा बिजनेस कर सकें या कहीं बहुत अच्छी एजुकेशन लें, हम बाहर नहीं जा सकते पढ़ने, फॉरेन कंट्रीज में नहीं जा सकते, या बिकॉज ऑफ अदर कंडीशंस यू आर अनेबल टू क्रैक सर्टेन एग्जाम्स लाइक MBBS और इंजीनियरिंग। सो UPSC is another platform where you can prove yourself and just jump the levels in the sense that it is not about money always. It is also about proving yourself. You have a dignity in the society because you are seen to be a person who can be approached for justice, for help, for development, who has the brain to think for the country, to see the country in future. तो आपको सोचना वैसा पड़ेगा, यानी कि जब आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, those activities are not non-serious activities. Those activities are to help you out for the preparation. For example, I left everything and I used to watch television because I was fond of television. But what I used to watch on television was Lok Sabha channel, Rajya Sabha channel, so that I can understand the policy making. I was so much interested कि भाई elections हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इसका background क्या है. So you start thinking like a bureaucrat. अच्छा इसमें bureaucracy का क्या role होगा, like that, you know. एंड गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं, जुडिशरी कौन से जजमेंट्स दे रहा है, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट डीपर हो जाता है. सो दिस इज़ द इनोसेंस ऑफ अ एस्पिरेंट आई थिंक विद विच वन स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग. उसके बाद की बातें नहीं पता होती, बट बिफोर क्रैकिंग द एग्जाम एंड स्टार्टिंग द प्रिपरेशन यू नीड टू बी समबडी हु लुक्स टूवर्ड्स सोशल सर्विस इन अ डिफरेंट वे. Like from the government organization, not from NGO. You are a government officer and you want to work for the people because there is a lot of public interface. You will have to deal with 100 of people coming with only their problem. So that has to be there in your mind when you start preparing. मैम आई थिंक पावर और मनी तो आई थिंक वो बाय प्रोडक्ट है ही. अगर आप IPS ऑफिसर बनेंगे तो वो अपने आप आएगा ही. तो आई थिंक वो सोच होनी ज़रूरी है कि व्हाट यू वांट टू डू फॉर द पीपल, फॉर द सोसाइटी. यस बिकॉज कल के दिन ये छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं. आप पहली बात तो क्रैक ही नहीं कर पाएंगे ये सोच के, क्योंकि अब UPSC ने पैटर्न ऐसा कर दिया है दैट इट इज़ अ वेरी आई थिंक एनालिसिस ओरिएंटेड पैटर्न, जहाँ आप मेंस के जब जवाब लिखते हो उससे पता चल जाता है आपकी पर्सनालिटी की, आप क्या सोचते हो. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यू टू राइट. इट इज़ नॉट थियोरेटिकल कि मैंने पढ़ा और मैंने लिख दिया. इट्स लाइक you read, then you read, higher readings are there, and there is research level. So they ask you a question where your mind will be forced to think and tell what will you think in a situation. Situation based questions होते हैं. तो जब तक आपकी सोच उस तरीके की नहीं है ना, तब तक आप कितना भी पढ़ लो आप situations को नहीं आंसर कर पाओगे. तो वो इसीलिए एक प्रैक्टिस चाहिए होती है उसमें. एंड देन इवन इफ़ यू क्रैक मेंस, इंटरव्यू में आपको जाना है. इंटरव्यू में पर्सनालिटी में तो सामने देर आर पीपल हु आर वेरी एक्सपीरियंस्ड. वो एक सेकेंड में पता लगा लेते हैं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ. नाउ इवन इफ यू क्रैक द होल एग्जाम एंड यू मेड अ मिस्टेक ऑफ becoming superficial and studying only for the sake of studying, your rank will not be as good as to get those 3-4 services which you want. So therefore I think when you prepare by heart, prepare by soul, and even in first attempt you can crack it. मैम जो आई थिंक पावर के लिए जा रहे हैं उनको लगता है कि ओके पावर मिल जाएगी, बट इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो स्पाइडरमैन ने कहा है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई थिंक वो एकदम परफेक्ट चीज़ है. सी आई थिंक अभी सोशल मीडिया, ह्यूमन राइट्स और इन सब
चीज़ों की इतनी अवेयरनेस है Yeah. that power is not absurd power. Hmm. Power is solely power to help people. Yes, exactly. You can't thrash someone and you Yeah. should not. Hmm. I mean, if you're losing your temperament thrashing people yeah. for no reason, Hmm. or you know, you should also have the understanding of कि अच्छा सामने वाला सिविल लॉ तोड़ रहा है या क्रिमिनल लॉ तोड़ रहा है, या सामने वाला सही में परेशान है या नहीं है. exactly. So the whole idea of power has changed now. You know, Yeah. the power trip cannot be really helpful for Yeah, you. yeah, yeah. Even if you crack the exam and आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं तो एक वर्ड ऑफ माउथ फैल जाता है कि भाई ये तो मैनेज नहीं कर सकता कुछ. देन यू डोंट गेट गुड पोस्टिंग्स, Yeah. देन यू नो यू फेल एज एन ऑफिसर. सो आफ्टर क्रैकिंग द एग्जाम there is a lot. You have to understand the job profile. You have to know कि मैं क्या करूँ इसमें. Yeah. हर तरीके का Exactly. ऑफिसर है, हर तरीके के आई विल से इंड्यूसमेंट्स हैं, और हर तरीके से आपका मन जो है इधर उधर जा सकता है. Exactly. बट टू फोकस, बिकॉज आपकी सर्विस बहुत लंबी है, और शुरू के 5-10 साल में आप किसी भी तरीके की पर्सनालिटी बन सकते हैं. exactly. सो इट टेक्स अ लॉट टू फोकस ऑन योर ओन पर्सनालिटी. Exactly. देर आर पीपल हु विल टेल यू दिस इज रॉन्ग, देर आर पीपल हु विल टेल यू ऐसा नहीं ऐसा करो और हमारी तरह बन जाओ, बट यू हैव टू चूज योर वे. Yeah, yeah. There are people who are very powerful and they meet you, Hmm. and you might forget that I was working for the grassroots level. exactly. You might be in this glamour world only. Hmm. So it is you who choose it. Hmm. But in that whole process, you don't become mad also. Like you have to be balanced. And the whole idea of using your authority or power in a legitimate way Hmm. for Exactly. the help of the people, because there's nobody who's going to check you. Hmm. कोई आपको चेक करने वाला नहीं है ऐसे. तो एटलीस्ट आपको अपने आप को तो जवाब देना Yeah, है ना. yeah, yeah. तो दैट इज हाउ आई थिंक. या मैम, अभी हम पावर के बारे में बात कर रहे थे ना, तो मैंने पावर को ना थोड़ा, मेरा एक अपना ओपिनियन था इसको ऐसे लेके. जब भी मैं जैसे ट्रैफिक लाइट में रुकता हूँ तो मैं जैसे बड़े बसेस और ट्रक्स को देखता हूँ ना, तो मुझे थोड़ा पावर ना वैसे लगता है जैसे पावर, मैम हम सभी कहीं ना कहीं पावरफुल हैं अपनी लाइफ में. कोई अपनी लाइफ को लेके कंट्रोल है हमारे ऊपर, किसी पे बिजनेस पे कंट्रोल है. तो एक स्कूटी को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अ कार. एक कार को हम ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अ बस और अ ट्रक. क्योंकि अगर वो बस और ट्रक हल्का सा भी इरिस्पॉन्सिबल है ड्राइवर, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है. तो मैं पावर को थोड़ा इस तरीके से देखता हूँ. मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ, तो वो मेरे को लगता है कि हाँ, कि और जो बस ड्राइवर है उसके पास काफ़ी और लोग भी हैं, तो अगर वो हल्का सा भी रिस्पॉन्सिबल है अपनी पावर के साथ, तो काफ़ी लोग डैमेज हो सकते हैं उस चीज़ से. मैं इस चीज़ को थोड़ा No, it is right, because once you are at a position, because government departments are still the biggest, I would say, hands in the facilitation of services to the country right now. हमारी एक डेवलपिंग कंट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ब्यूरोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो हियर ऑब्वियसली पावर्स आर देयर, एंड एज यू सेड दैट यू नो ट्रक्स का ज़्यादा पावर हो जाता है. सो जस्ट थिंक ऑफ अ ब्यूरोक्रेट हु is just irresponsible. तो वो कितना लॉस कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ एन IPS ऑफिसर अगर पावर ट्रिप हो जाए, तो व्हाट विल यू डू? यू विल ruin people's life. I mean, people who are going to jail or who are getting accused, for you it is nothing, but for them generations, not just one life, but generations will be spoiled. It is not an easy thing. So you have to be very humble. I mean, a truck which doesn't pace a lot, which doesn't do the harsh driving thing, which lets other smaller vehicles to go aage. So that is the kind of training that a bureaucrat has to do once they enter the service. But you have to understand, you know, that I have a lot of burden also, because I'm not just a bigger truck, but I have a lot of load. You know, if that load goes left and right, finally I will be responsible for all the damage. And when you realize finally कि भाई मैंने किसी की लाइफ में गलत कर दिया है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत दिल दुखता है. तो इसीलिए हमेशा ना पावर को किस तरीके से हैंडल करना है वो आना और वो प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है. एंड आई थिंक हमारा जैसे उत्तराखंड का काडर है, तो वन ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द काडर इज़ दैट आवर ऑफिसर्स आर वेरी नाइस, एंड वी आर अ वेरी स्मॉल काडर. सम 50 to 60 ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर है. हम लोग सीनियर्स से काफ़ी बात करते हैं, सीनियर्स हमें बताते हैं. फिर एज एन IPS ऑफिसर हमें अकेडमी में भी काफ़ी ट्रेनिंग मिलती है इन सब चीज़ों की. अकेडमी में I think one of the best academies are Academy, National Police Academy, not only by regarding the facilities, but we are trained to, you know, work hard for people. We are trained like a constable. We are trained like a, you know, say, like every duty, like a sentry, like being in the thana, in the smallest post. So we know the pain. We are also trained to be the mob, where police is doing some, you know,
control actions, and you are on the mob sometimes and you are sometimes on this side, so we have this role play also. So I think the academy really helps us to understand what is the situation, what is the tension that is there on both the sides. तो वो अब ट्रेनिंग में इतने अच्छे चेंजेस आ गए हैं, and now officers are so they are open to I will say that they keep talking about how young officers are and how they should be groomed. तो हमारी स्पेशल ग्रूमिंग कार्डर में भी आके होती है. सो आवर ट्रेनिंग इज इन अ पैटर्न कि हम पहले अकेडमी में रहते हैं, फिर हम कार्डर में आते हैं, कार्डर के बाद दोबारा अकेडमी में जाते हैं. तो कार्डर में जब हम ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो हम किसी एक एसपी या एसएसपी के अंडर होते हैं एज एएसपी, असिस्टेंट टू एसपी. तो वो हमें बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह रखता है कि देखो ये सही ये गलत है. दे आर एक्सपीरियंस्ड पीपल, सो दैट वेज वी गेट अ लॉट ऑफ हेल्प. एंड इन उत्तराखंड राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल यू कैन एज एन ऑफिसर यू कैन स्पीक टू योर सीनियर ऑफिसर्स एंड दे विल पिक योर फोन. सो वी हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट हियर. फॉर एग्जाम्पल इन बिगर कार्डर्स वहाँ पे नहीं होता है इतना, क्योंकि भाई डीजी वहाँ पे नहीं उठा पाते हैं फ़ोन अपने ऑफिसर्स का भी. यहाँ पे इतने हम्बल हैं ऑफिसर्स, दे कीप हेल्पिंग ईच अदर कि नहीं रचिता ऐसे में आप ऐसा मत करो, ऐसा करो. सो दैट सपोर्ट वी गेट अ लॉट इन उत्तराखंड कार्डर. तो एक तरीके से ना कार्डर का माहौल भी बनता है कि आपके सीनियर्स कैसे हैं, किस तरीके से जूनियर्स को मैनेज कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आप लोग चल रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ वी ट्रेन ईच अदर सो दैट we send one message in the public, we don't send different messages. जैसे अभी जब से मैंने कार्डर एंटर करा है तब से मैंने देखा अनिल कुमार सर हमारे डीजीपी रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे अशोक सर हैं अभी. देयर फोकस वाज ऑलवेज दैट रचिता वी नीड टू इम्प्रूव द इमेज ऑफ द पुलिस. कि पुलिस को लोग कहते हैं कि भाई पैसा लेती है, डंडा बजाती है, हमें ये इम्प्रूव करना है क्योंकि उत्तराखंड पुलिस ऐसी नहीं है. एंड इन एक्चुअलिटी वी आर डूइंग रियली गुड इन अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स, इन्वेस्टिगेशन से लेकर कन्विक्शन रेट तक, the way we are handling tourists, the way we are handling the calamities that are happening. So that way I think the cadre is very much focused on how people look at us, because we are a young cadre. हमें अभी इमेज बनानी है, तो वो एक यहाँ पर हेल्प मिल जाती है उत्तराखंड में. और मैम जैसा आपने कहा ना कि लोगों को लगता है कि पुलिस पैसे लेती है या कुछ, आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि किसी ने ब्राइब करने की कोशिश करी? क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूँ, मिला हूँ, आई फील सॉरी फॉर दैट पर्सन अगर किसी ने किया भी है तो. नो, सो आई विल टेल यू, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि जब देखिए जब आईपीएस ऑफिसर एएसपी जाते हैं तो वो जाते हैं सबसे पहले थाने की ट्रेनिंग पे. हम थानेदार बन के जाते हैं, तो सब लोग बहुत डरते हैं आईपीएस ऑफिसर, क्योंकि यंग ऑफिसर अकेडमी से आया, अकेडमी ने बहुत सिखा के भेजा है कि छोड़ना मत उस आदमी को जो करप्शन कर रहा है. तो हम तो जाते ही इसलिए हमें भेजा ही इसलिए जाता है कि इसको वहाँ भेजो एएसपी बना के, जहाँ लग रहा है कि करप्शन है, दे विल सॉर्ट इट आउट. सो दैट इज पावर ट्रिप. दिस पावर ट्रिप यू कैन एंजॉय कि मैं करप्शन होने नहीं दूंगी इस जगह पे. तो आई वाज पोस्टेड इन उधम सिंह नगर एंड देन आई वाज सेंट टू काशीपुर एज थाना इंचार्ज, एंड आई वाज टोल्ड बाय माय एसएसपी, दाते सर वाज द एसएसपी एट दैट टाइम, वेरी रिफाइंड ऑफिसर एंड वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर. इसे रचिता, काशीपुर में जो भी करप्शन होगा उसे तुम्हें ख़त्म करना है बस. सो आई वेंट देयर एंड हाउ ओल्ड वर यू? I was around 26. Oh, yeah. wow. So I was like, I have to go and do it, and we did that. And nobody ever pressurized me. There was a lot of people against me because नई ASP कहाँ से आ गई, अभी तो सब कुछ सही चल रहा था. बट हमने बहुत चीज़ें सॉल्व करी, एक सिस्टम बनाया, उधर से मेरे कप्तान ने बनाया, इधर से मैंने, तो धीरे धीरे हमने उसको करा. सो वी वर सो, मतलब इट वॉज वेरी टफ. रात को 3-3 बजे तक जो है ना सोते नहीं थे. और मैं एक बारी तो 30 दिन बाद तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे. मतलब करूँगी कैसे मैं ये, अगर ये 3 महीने की नौकरी ऐसी है तो आगे कैसे चलेगी 30 साल की नौकरी. बट देन दैट ट्रेनिंग रियली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ एंड हाउ ASPs, young ASPs, they can just kill it on the ground. And जब आप जाते हो ना ग्राउंड में परेशानियाँ देखते हो तो आपका दिल वैसे ही दुखने लगता है. तो आई थिंक मेरी इमेज उसी टाइम पे बन गई थी. तो दे से इमेज ट्रैवल्स फास्टर देन यू. तो मैं हमारे ट्रांसफ़र होने से पहले जो इमेज चली जाती है. तो व्हेन आई गो एनीवेयर पीपल जनरली आर लाइक ठीक है मैम आ गई हैं तो अब ये सब तो बिल्कुल नहीं चलेगा. एंड आई टेल पीपल, इफ यू वांट टू डू दिस, लीव योर जॉब, यू गो डू बिजनेस, डू एनीथिंग, बट नॉट विद द वर्दी. आई ऑलवेज टेल पीपल दैट एक वर्ड याद रखो कि वर्दी का जो एक पैटर्न है उसमें अगर इतना सा भी दाग लग गया ना तो वो तुम पे नहीं, पूरे डिपार्टमेंट पे है. क्योंकि कोई ये नहीं कहेगा कि ये आदमी, लोग कहेंगे पुलिस ने किया. तो इसलिए बहुत हमें सेंसिटिव रहना पड़ता है.
मैम जैसे मैं आपसे परसों भी बात कर रहा था इस बारे में कि जब कोई लोग एक लड़की को देखते हैं एक पावरफुल पोजीशन में, तो कुछ लोगों के पास वो अभी भी पुराने ज़माने वाली सोच रहती है कि ओके हम इससे पावर लेंगे, वो मेल ईगो किसी किसी का आ जाता है। और आप कह रहे थे कि आप ये अभी तक भी फेस करते हैं कहीं ना कहीं, तो आप इन चीज़ों को कैसे डील करते हैं? अब तो खैर देखो आदत हो गई है फेस करने की, डील करने की, और अब एक्सेप्टेंस भी आ जाता है काफ़ी। लेकिन इनसे आपका ना, मेरा ऐसा नहीं है कि आई वॉज अ वेरी परफेक्ट ऑफिसर। तो एक किस तरीके से सामने वाले को टैकल करना है, किस टाइम पे अपनी बात रखनी है, कब अपनी बात नहीं रखनी है, कैसे सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लेना है, और कैसे उसकी ईगो को सटली ऐसे वो करना है, कैंसिल करना है. सो दोज थिंग्स, बिकॉज वन थिंग शुड बी क्लियर टू the officer, like me, it was clear to me कि no matter what, whoever it is, I have to stand for the right thing. Now you can shout when you stand, or you can just say subtly when you stand. So that practice of putting your point in a way that it doesn't offend anyone is really important. क्योंकि जब भी आप किसी को offend करते हो ना, आपका point invalid हो जाता है. तो आपको वो प्रैक्टिस आनी चाहिए. बट जब आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ नहीं ऐसे काम चल रहा है और मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में यू कैन बी अ लिटिल strong and show that no, there is a point. Otherwise I think सिर्फ सामने वाले को नहीं बदल सकते हो, आपको अपने मेथड बदलने पड़ेंगे. तो you have to learn a lot of methods. So एक तो बीच में तो मैं डॉक्यूमेंट करने लगी थी कि I am learning so many skills to pursue my thing, because sometimes you have the faith कि यार मैं सही हूँ, सामने वाला एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, बट आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है या आपको अपनी आवाज़ इंपॉर्टेंट है? पॉइंट इंपॉर्टेंट. पॉइंट को प्रिवेल करने के लिए आपको मेथड्स डेवलप करने पड़ते हैं. सो दैट practice you have to do whenever you enter a department or a job, not only here but I think in private organization also it is same. मैम मैं एक सीरियस टॉपिक टच करना चाहूँगा. लाइक बीइंग अ गर्ल, आप देखते होंगे आजकल जो भी न्यूज़ आते हैं, रेप केसेस, मर्डर केसेस, एंड मैरिज में भी रेप होते हैं और लोगों को पता भी नहीं है कि वो रेप है. तो मैम आप इन चीज़ों को किस तरह से देखते हो? क्या आपको लगता है लॉ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए या कुछ और? बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि हम एक बारी को लॉ स्ट्रिक्ट करते हैं, बट शायद वो फिर जो क्रिमिनल है वो इस वजह से वो क्राइम कमिट नहीं करेगा क्योंकि लॉ स्ट्रिक्ट है और वो डर गया, लेकिन उसकी सोच अभी भी वही है, वो बस कर नहीं रहा है क्योंकि लॉ स्ट्रिक्ट है और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है इसके बाद. डू यू थिंक कि हमें, अगर हम एक स्टेप बैक लें और उस सोच का हम कुछ करें, लाइक स्कूल से ही स्टार्ट करें, वर्कशॉप स्टार्ट करें, कि पेरेंट्स को हम वर्कशॉप दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को दे रहे हैं कि अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए और क्या सही है और क्या गलत है. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? सी आई थिंक कहीं ना कहीं देखो, लॉ तो स्ट्रिक्ट है, लॉ मीन्स समथिंग स्ट्रिक्ट ओनली, बट येस विद टाइम वी कैन amend laws, we can add something, and there are authorities sitting to do that. तो वो होता रहता है continuously, that there are changes, there are judgments, there are Supreme Court judgments, and there are additions and amendments always. And there are new laws also, like POCSO का नया एक्ट आया था बच्चों के लिए. So there is always a change, and there is law में सब चलता है. But we also have to as a society think that how we are grooming our kids, not only boys but also girls also, what opportunity we provide them, how much we make them confident, what we train them like, and then the boys also. तो दोनों की एक तरीके से समान ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे आपस में डिफरेंस ही ना पता चले. उसके अलावा सोसाइटी में एक खुद भी चेंज आना चाहिए. आई थिंक ऑल द एनर्जी शुड बी पुट इनटू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, समथिंग वेयर पैशन कैन बी परस्यूड. अब लोगों की सोच तो बदली नहीं जा सकती है, लेकिन येस, व्हेन वी टच द एजुकेशन सिस्टम, वी स्टार्ट विद द एजुकेशन सिस्टम. So we have two education system. One is the formal one where we go to school. The other is home. So both ways. I think आप स्कूल के एजुकेशन में भी कुछ लगा दोगे, लेकिन घर में क्या हो रहा है तो वो बहुत ज़रूरी है. तो एज अ सोसाइटी वी ऑल हैव टू थिंक दैट सामने जो बच्ची है वो सिर्फ किसी और की बच्ची नहीं, वो मतलब हमारी भी हो सकती है ना, ऐसा तो है नहीं. तो वी हैव टू बी लेस सेल्फिश कि मेरी फैमिली बस, मेरे बच्चे, मेरा ये. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ इक्वल राइट, एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ओपन माइंडेडनेस, अ लॉट ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर. और ऐसा नहीं है कि गाँव में प्रोग्रेसिव नहीं है और अर्बन में
इट हैज़ नो इकोनॉमिक क्लास, आई हैव टू टेल यू. इकोनॉमिक क्लास कोई नहीं होती है प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लिए. इवन फार्मर्स आर समटाइम्स मोर प्रोग्रेसिव देन पीपल हु आर सिटिंग इन सिटीज़. सो वी हैव टू एज अ सोसाइटी हमारा जो कल्चर है, हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है और हमारा बिहेवियर है, सिर्फ सोच से और बातों से कुछ नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू, मैं बाहर जाके किसी बच्ची से बोलती हूँ कि हाँ ठीक है तुम्हारी गलती है, you know. So it's not only talks, we have to ourselves question ourselves that how are we behaving, what are we teaching, what are we reflecting. तो सोसाइटी का ये माइंडसेट और बिहेवियर का जो इम्प्लीमेंटेशन है, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट येस इट इज़ पॉसिबल एंड लॉट ऑफ चेंजेस हैव कम अप. हम लोग अपनी फैमिलीज में भी बहुत चेंजेस करते हैं एज लेडीज. समटाइम्स वी टेक स्ट्रॉन्गर स्टेप्स टू टेल दैट यू नो नाउ वी आर एम्पावर्ड, वी आर एजुकेटेड, and we are taking this step so that we are the one like an example for other people, you know. तो ये सारी चीज़ें हम जो भी हम कर रहे हैं वो कभी कभार हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सोसाइटी में मैसेज देने के लिए करते हैं एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज एन ऑफिसर आई एम सेइंग, बट एनीबडी, एवरीबडी कैन मेक अ डिफरेंस बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल, यू नो. सो दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी. मैम आपको कभी कोई ऐसी सिचुएशन थी या कोई ऐसा केस हो जब आपको मतलब आई थिंक एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट आपको लगा हो कि ओके आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई एम इन दिस प्लेस, दिस पावरफुल प्लेस, कि मैं ये स्टेप ले सकती हूँ. कुछ कभी ऐसी कोई किस्सा हो या कोई? सो एज यू सेड कि बहुत होते हैं, और वो जो मोमेंट होता है ना, तो आप जब भी मतलब एक पोस्टिंग में जाते हैं तो बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ फॉर एन ऑफिसर. उन सारे स्ट्रगल्स में आप वैसे जूझ रहे होते हैं, सडनली आपको एक मोमेंट आता है, वो आई हेल्प दिस पर्सन एंड देन यू आर लाइक दिस इज व्हाट आई वाज मेंट फॉर, दिस इज व्हाई आई वाज. सो देर आर अ लॉट ऑफ इंसिडेंट्स, बट एक बारी मैं आपको रिसेंट वाला बताती हूँ बिकॉज दैट इज़ फ्रेश इन माई मेमोरी ऑल्सो. तो आई वॉज SP बागेश्वर बिफोर ADC टू द गवर्नर एंड लॉकडाउन फर्स्ट आया था. फर्स्ट लॉकडाउन वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज पीपल डिडंट नो. लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, खाने को नहीं था. सब लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, हम भी कर रहे थे कि भाई हॉस्पिटल्स के लिए एम्बुलेंस बना दी, लोगों को मदद करी, वी वर डूइंग एवरीथिंग. वन डे कॉल केम टू मी कि मैम यहाँ पर एक आदमी पड़ा हुआ है, उसमें मक्खियाँ पड़ गई हैं, कीड़े पड़ गए हैं, पर उस सांस है उसमें. तो सम रैंडम पर्सन फ्रॉम द पब्लिक कॉल्ड मी. आई सेंट माई फोर्स देयर. दे सेड कि मैम इसमें हाँ जिंदा है ये, और पर इसे ले जाएं कैसे, इसे कोई छूने को भी तैयार नहीं है, इसकी फैमिली ने भी इसे निकाल दिया है, और इसके पैर गल गए हैं, कुछ पैरों पे कीड़े लग गए हैं, कुछ ऐसा हो गया. तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसे किसी तरीके से ले गए. हॉस्पिटल में भी समहाउ नर्स ने मना कर दिया कि मैं नहीं इसको टच करूँगी, इतनी गंदी हालत थी. तो मैंने पहली बार उस टाइम पे सारे मीडिया पर्सन्स, सारे जितने भी वहाँ पर मतलब ऐसे लोग थे जो सोशल वर्क करते थे, उनका एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप, एंड आई मैसेज देम दैट आई नीड योर हेल्प फॉर द फर्स्ट टाइम. आप लोग मुझसे हेल्प मांगते हैं, मुझे इस आदमी को ऑपरेट कराना है और पूरा ठीक कराना है. आई डोंट नो हु ही इज. एवरीबडी वेंट देयर, और मीडिया ने कवर किया. जब मीडिया कवर करने लगे तो हॉस्पिटल खुद ब खुद आ गया फॉर्म में, फिर उसको ऑपरेट कराया. सोशल जो हमारा ग्रुप था उसमें से एक आदमी उठा, उसने बोला कि मैं इसका नर्सिंग का काम करूँगा और मैं इसका हाथ लगाऊंगा, टच करूँगा, और नर्सेस की ज़रूरत नहीं है. फिर उसको ऑपरेट करा गया. फिर मैं कभी मिलने नहीं जा पाई उससे बिकॉज आई वॉज बिजी, बट ऑन फोन आई वॉज डूइंग एवरीथिंग. एंड हमारे कुछ सोशल जो वर्क करते थे लोग, उन्होंने एक चंदा पूरा कंट्रीब्यूट करा, हमने भी दिया, उसका ऑपरेशन हुआ, सब हुआ, दोनों टांगे काटी गई. उसके बाद मुझे बाद में किसी ने बताया कि मैम ये आदमी, यहाँ पे नदी चलती है सरयू गोमती, तो जितने लोग यहाँ पे डूबते थे ये आदमी उन्हें बचाने जाता था. तो इसने हज़ारों की ज़िंदगी बचाई है, लेकिन आज पानी की वजह से उसके पैर सड़ गए हैं, तो उसे कोई पूछने वाला भी नहीं है, और आपने उसकी जान बचा ली है, बट ही इज़ इन डिप्रेशन क्योंकि उसे पैर नहीं है उसके ऐसे डोके. सो ऑल दिस हैपेंड. अब मेरी पोस्टिंग हो रही थी एज ADC. सो दिस वाज माय लास्ट डे. मैं अपने घर से सामान बांध के जा रही हूँ और देहरादून जा रही हूँ हमेशा के लिए, कभी वापस नहीं आऊँगी बागेश्वर. सो आई सॉ अ मैन ऑन व्हील चेयर फ्रॉम दैट साइड कमिंग एंड माई कार गोइंग लाइक दिस, एंड दैट मैन डिड दिस एंड डिड दिस टू मी, ऐसे हाथ जोड़ के नीचे झुका, एंड आई वाज लाइक माई टेन्योर इज सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी विद माई टेन्योर. सो दैट वाज वन, मुझे ऐसा लगा कि अब इसकी ब्लेसिंग मेरे साथ हमेशा. So these moments, you know, and this is only one moment. I have had moments related to women, related to kids who had lost their mother. So many other moments. So I think ये मोमेंट्स से ऐसा लगता है कि नहीं, वर्दी की नौकरी मुश्किल है लेकिन अच्छी बहुत है. हाँ जी.
मैम आई थिंक एक रीज़न हम्बल रहने का ये भी होता है कि यू नो द पावर ऑफ ग्रेटफुलनेस, यू आर ग्रेटफुल टू समवन और समथिंग, तो आई थिंक उससे भी कहीं ना कहीं एक हम्बल बिहेवियर आता है इंसान में, चाहे आप किसी भी पोजीशन में हो. If you think that you are the guardian, Yeah. irrespective of your age. For example, if you become an IPS officer at the age of 21, but you don't take yourself as a, somebody 21 age, जी. but an IPS officer, Yeah. then you are the guardian at a lot of moments. Not always. कि ऐसे नहीं कि चलते फिरते लोगों को टोकने लगे कि मैं तो गार्जियन, बट व्हेन समबडी इज कमिंग टू यू, दैट मीन्स वो आदमी मदद के लिए आ रहा है ना, उसको कुछ तो लगा होगा कि यार मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, मैं इस पे चले जाता हूँ. तो कोई दुख में ही होगा तभी पुलिस पे आएगा, है ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ऐसा सोचते हो कि अगर मेरे पास कोई आया है और मैं उसका, मेरे पे पावर है और मैं इसका गार्जियन हूँ, तो आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. अगर वो गलत भी है तो वो आपकी बात से समझ जाएगा. सो दैट हेल्प्स यू अ लॉट टू सेंड द राइट मैसेज टू द पर्सन कि मैं या तो आपकी मदद ऐसे कर सकता हूँ या आप गलत हैं. तो यू हैव टू एक्ट लाइक अ गार्जियन एट अ लॉट ऑफ मोमेंट व्हेन पब्लिक इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू आस्किंग फॉर हेल्प. सो बहुत बड़ी बात है कि आपके पास कोई मदद मांगने आ रहा है. उस समय अगर आप एक एरोगेंट व्यक्ति की तरह एक्ट करोगे, nobody will come again. You will lose that power. Even after having all the power, you will lose that respect. So I think the power of having respect in public, respect amongst people, is the biggest power. So that power you have to earn. मैम आप मेरे को बता रहे थे कि जब आपकी रैंक आने वाली थी तो आपको उससे पहले ही एग्जैक्ट नंबर पता चल गया था कि आपकी रैंक क्या है, उसके बारे में बताओगे? I don't know. I mean, ये intuition भी कह सकते हो, because when you are studying for like 12 to 13 hours, तो आप मेडिटेशन ही कर रहे हो अकेले कमरे में बैठ के, आप किताबों में घुसे हुए हो. तो व्हेन UPSC सेट की फ्राइडे विच इज़ द नेक्स्ट डे 1:30 बजे रिजल्ट आएगा. सो आई वाज लाइक ओके. एंड देन जब मैंने खोला नेट तो मुझे ना 15 नंबर मेरे दिमाग में घूम रहा था. सो इट इज़ द ट्रूथ दैट आई डिडंट स्टॉप ऑन एनी नंबर. आई स्टॉप्ड ऑन 115. मेरा नाम नहीं था. 215 मेरा नाम था. सो दैट वाज वन हिट, बिकॉज आई थिंक मेरा इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था उस टाइम पे. स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग है. अब उसका कोई रीजन रैशनैलिटी तो नहीं है, बट दिस हैपेंड. यस. वाओ. बट वो भी बड़ी कमाल की चीज़ है ना कि आप सिर्फ 115 और 215 ही देखा आपने. मुझे था 15 तो नहीं आएगा अभी, लेकिन दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट आल्सो. एग्जैक्टली. और आप कह रहे थे कि आपकी नानी जी को भी कुछ दिखने लग गए थे, ऑफिसर्स वगैरह. हाँ. सो माय नानी, शी वाज अ कैंसर पेशेंट एंड आई वाज ब्रॉट अप बाय माय नानी. तो मैं उन्हें नानी नहीं मम्मी बोलती थी. तो नाउ शी वाज अ कैंसर पेशेंट, आई एम गिविंग द एग्जाम. तो हम आपस में ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ. एंड उनका कैंसर मेटास्टेसिस में आ गया था, यानी कि पूरे बॉडी में चले गया था. एंड जब उनका ब्रेन का स्कैन हुआ तो इट वाज ऑल ब्लैक. देयर वाज नो मेमोरी. कुछ भी रैंडम होता था. ऐसे शी यूज्ड टू ले डाउन. ऑर्गन भी फेल हो रहे थे धीरे धीरे. तो वो बीच बीच में ना उठती थी और चिल्लाने लगती थी मेरा नाम और कहती थी चलो परेड करो. और फिर कभी मेरे को सल्यूट करेंगी. तो मुझे ऐसा लगता था ऐसे क्यों कर रही है, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग. आई डिडंट नो कि मैं IPS बनूंगी या क्या बनूंगी, कुछ नहीं पता था उस समय. तो मुझे लगता था ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नाना भी पुलिस में थे. तो मुझे लगा शायद बड़ा उनकी इच्छा तो थी उनकी बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है उस वजह से भी करती हूँ. एंड देन शी यूज्ड टू से अभी ये ट्रेनिंग से आई है और ये इसके साथ के लड़के हैं ऐसे ना. शी यूज्ड टू ड्रीम, डे ड्रीम और समथिंग, स्पीक एनीथिंग. बट फॉर मी शी यूज्ड टू डू सो मच. आई मीन इतना कि ये ट्रेनिंग पे कर जा रही है, पुलिस बनेगी ऐसे. एंड शी यूज्ड टू डू दिस एंड सल्यूट मी लाइक दिस. तो हम लोग सब हंसते थे उस टाइम पे. एंड व्हेन माय रिजल्ट केम एंड रिजल्ट के बाद सर्विसेज डिक्लेयर होती हैं, बट आई टोल्ड एवरीवन आई एम श्योर आई विल गेट IPS. IPS वाज माय फर्स्ट चॉइस आल्सो. तो सबने बोला कुछ नहीं पता, क्या पता ना आए और ये वो. फिर जब वो आई तो एवरीबडी वाज रिमेम्बरिंग हर दैट शी वाज लिविंग द फ्यूचर. तो इट्स हर ब्लेसिंग आल्सो. मैम आप मानते हो मैम वैसे इन सब चीज़ों में, लाइक आपका क्या थॉट है स्पिरिचुअल चीज़ों को लेके और लाइफ इन जनरल लेके? सी आई थिंक इफ़ यू आर कितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ लाइफ में ना, प्रॉब्लम्स और होपलेसनेस सिचुएशन आती है. और मैं ना अपने हस्बैंड यशस्वी को भी ये कहती हूँ कि वन शुड बी अ बिलीवर. आई डोंट नो इन व्हाट, but in a power, in somebody superior, that helps you to kill your ego, number one. And जब सिचुएशन होपलेस हो जाती है ना, तो वो आपको हेल्प करता है ये सीख करने में कि हाँ मैं मैनिफेस्ट करूँगा, मैं प्रे करूँगा, जो भी करूँगा
पूजा करूंगा, मंदिर जाऊंगा, जो भी जिस भी फॉर्म में कह लो, या बैठे बैठे ऐसे किसी को याद करूंगा, देयर विल बी सम हेल्प. सो आई थिंक ह्यूमन रेस इज बेस्ड ऑन होप. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. That is why my channel's name is Hoping For. Hoping For. It also, ये podcast का नाम है, YouTube चैनल का नाम है Hoping For. Yeah. Nice. Because बचपन से मेरे को लगता था कि it all starts with hope. चाहे हम कितने भी सपने देख लें, वो जो एक्शन लेते हैं ना हम, जो वो एक होप से स्टार्ट होता है कि ये बनेंगे, वो बनेंगे, वो हमेशा एक होप से स्टार्ट होता है. And also I have seen people in crisis, very intelligent people in crisis who don't believe in anything, who are not introduced to spirituality, the concept of God or Almighty or somebody. They are like, how to deal with this? They become so, hopeless. And then I tell them, when such a situation happens and you think you can't do anything, please think of somebody bigger who has a plan. Maybe this is the right situation for you. Maybe you are thinking it's a crisis. Maybe a bigger crisis has been stopped. So spirituality always give you positivity, a hope, as we said, for a future, a hope that there is somebody else also bigger. हम पे सारा जिम्मे नहीं है दुनिया का ना, हमने अपना काम कर दिया, बाकी ईश्वर देखा गया, वो वाला. वो बिलीफ बहुत जरूरी है. तो मैम अब थोड़ा आपकी लव स्टोरी के बारे में बात करनी चाहिए हमको. वो इट्स अ फन टॉपिक. प्लीज टेल अस हाउ डू यू मेट यशस्वी. So I knew Yashasvi by name. ऐसा नहीं था मैं कभी मिली थी उससे. But then in second wave of COVID, I was ADC to the governor, but we were not doing a lot of job in the governor house. So before the services, I was in NGOs and I used to do a lot of social work. So I was already attached to a lot of them. तो मैं काफ़ी NGOs को from Maharashtra, Gujarat and Uttarakhand and Delhi, I was helping them to bring aid to Uttarakhand and supply it without any hurdles. So now there comes some NGO and they told me कि मैम आपकी मदद चाहिए. They added me to some WhatsApp group also. Yashasvi was a part of that group, his brother and everybody was there, his friends also, the whole team was there. And then हम लोग, because we all like our ancestry is from Pauri, all of us. तो मैंने उनसे बोला कि आप अगर ऐसा सोचोगे कि हम पूरे उत्तराखंड में एक चमत्कार कर देंगे तो नहीं होगा. Let's start with a pilot project from Pauri itself. So every PHC of Pauri we picked up. There were 90 PHCs at that time. और हमने वहाँ पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर, एक फोल्डेबल बेड, इम्पॉर्टेंट मेडिसिन प्रोवाइड करी और उसके अलावा भी बहुत सारी हेल्प करी. तो इन दैट होल प्रोसेस वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट बिकॉज फ्रॉम हिज टीम ही वाज द वन कि मैम क्या करना है, कैसे करना है. ही वाज द मोर इंटेलिजेंट वन. आई वांट टू से दैट. इट मेक्स मी फील बेटर. एंड फ्रॉम हियर आई यूज्ड टू कोऑर्डिनेट. देन आल्सो इट वाज सबसे फनी तो मुझे वो लगा था जब आपने कहा था, जब आप पहली बार उनसे आपने बात करी थी कि बच्चे हैं ऐसे. सो आई वाज लाइक, अरे दीस किड्स ना, दे डोंट know much, I should help them out. So not like that. I was like, they are not exposed to the politics of the environment, to administration, to other things. तो इनको थोड़ा सा groom करना पड़ेगा इस तरीके से. So I used to help them like that. तब भी ऐसा कुछ नहीं. We were good friends and we started becoming good friends. Now he told me that he is an artist and मुझे लगा देहरादून में आर्ट की इतनी वैल्यू है. लाइक आर्टिस्ट आर वर्किंग फ्रॉम देहरादून, दे आर डूइंग सच ग्रेट जॉब. ही टोल्ड मी अबाउट लॉट ऑफ रैपर्स, लॉट ऑफ म्यूजिशियन, लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स who are going to the international competition and talent is here. So I being from Dehradun, I was very much interested. I met a lot of people, went to his studio. He introduced me to his movies, some kind of songs which I had not heard, and I developed a taste for it. I was like, this is the reason I don't like a lot of commercial stuff, because maybe my artistic mind never could find it. So that was I started liking his work, his personality, his talk. And then as I told you that I was not the one to pursue. वो तो हाँ मैम, वो तो बनता है. मैंने भाई को भी बोला था कि वो बनता है. So this is how we met. And this is how it all started. So it only started like that. Then we very smartly took the relation that let's talk. Let's talk about behavior, about life, about visions, about how to gel together. When it all happened, then we decided that yes, we can get married also. Okay. Ma'am, do you remember that moment when it just clicked? Okay, he's the one. How do you know that I remember the moment? मैं पूछ रहा हूँ ऐसा ही क्योंकि वो कभी-कभी लोगों को याद रहता है कि वो ये moment था. So with me it is always a moment. I am somebody who keeps thinking and I don't get a way out. And then I leave thinking. Then there is a eureka moment for me. So that happens with me. So with Yashasvi also I was like, his field is different, mine is different. We have recently met, but we know each other a lot. So all the social
जो कंसेप्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होते हैं शादी को लेके, उसके तो अगेंस्ट था ये पूरा रिलेशन ना. सो दैट इज आई वाज थिंकिंग, बट देन आई सेड स्टॉप थिंकिंग, लीव इट. एंड देन वन डे Raghav, his elder brother, he wanted to shoot a ad, so they said कि we are near your house, can we come there? I said okay, come. तो वो ऊपर शूट कर रहे थे. So I still remember it was this time, just some days before Diwali, and सब जगह lights वगैरह लगने लगी थी शाम का टाइम से. He was in the safari and I was said, and I told to myself that life is so short. We are standing here today, he's driving, I'm looking at him, he's a kind, nice human being who can, help me to just grow in life, and I can also help him out. Exactly. So why think so much? So that moment I remember. That moment I told myself, no looking back. Wow, great. Ma'am, what do you think makes a good relationship? कभी कभी बहुत जल्दी अच्छे रिलेशनशिप्स भी टूट जाते हैं, और कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है लेकिन वो आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती है, बहुत अच्छी बन जाती हैं. तो व्हाट डू यू थिंक, देयर इज अ सीक्रेट और समथिंग? See, I have a very limited experience. Okay, okay. But still, yeah, I think with everyone there are different dynamics. But yeah, you have to be again a very good human being to have a very good relationship. Wow. So, and if you are not, and if you think there are problems with you, you can deal with it. Yeah. So the whole, I think, the willpower to become a better human being for the relationship and not change also. I am who I am, and it has to be mutual. See, if you respect each other, and if there has been कुछ कमी हो गई रिस्पेक्ट करने में, तो आपको वो एक्नॉलेज करके रिस्पेक्ट करनी शुरू करनी चाहिए. रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली, we are two different people. Let's give space to each other. So that is very important. आजकल के ज़माने में, space is important, yes. And thirdly, loving each other's friend is very important. Yeah. Very important. His friends love me, and I introduced him to my friends, and I told him that better love my friends also. Exactly. So that helps you, because you don't feel like strangers. You feel like coming from the same family. Exactly. And then on and off, if there's something that hurts, because दो लोग हैं तो कुछ ना कुछ तो हो गई ना गड़बड़. You cannot shout, you cannot demean, Exactly. you can't cross a line, you can't insult. Be a good human being again to Exactly. each other. Talk about it. Yes. Not today, tomorrow. Yeah. And the whole idea that मुझे इसके साथ ज़िंदगी भर रहना है, अगर ये दिमाग में रहे तो अपने आप वहाँ सिचुएशन आप डील करने लगते हो. So apart from respect, space, the how to tackle that moment of fire and fight. That is very important. Yes. क्योंकि हमें किसी और इंसान के लिए झुकना तो पड़ेगा ही. Exactly. और हम अपने अच्छे के लिए झुक रहे हैं, है ना. और अपना पॉइंट को कैसे रखना है, जैसे I learned this from Yashasvi, कि when he puts his point, he never shouts, but he knows that I'm putting a point. I am not saying that you are right now, but I'm putting a point. Yeah. So you discuss a lot of things. So with each other, you grow. And धीरे धीरे एक दूसरे की आप अपनी भी कमियों को देखकर उसको सॉल्व करने लगते हो. नाउ विद अस, व्हेन वी हैव डेल्ट विद दिस, वी आर एबल टू हेल्प द फैमिली आल्सो विद द सेम थिंग. कि ओके, पेरेंट्स समटाइम्स दे हैव अ प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन, वी हेल्प देम आउट आल्सो एंड टेक हेल्प फ्रॉम देम आल्सो. सो द होल key to the relationship is to be more humble, to be more respectful, but be on your point. Yes. You cannot lose your character, your point, your traits for somebody. But yes, you can accept each other in a loving way. Exactly. मैम, किसी भी रिलेशनशिप में ना, मतलब कोई भी अगर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, मैं सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट हम लड़के ना बहुत जंगली होते हैं थोड़े. तो हमारी लाइफ में जब कोई लड़की आती है तो हम उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं, और काफ़ी एक राइट पाथ हमको दिखता है कि ओके ऐसे करते हैं चीज़ें, थोड़ा ये चीज़ें होती है. बट एज अ गर्ल, डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि वो आपने उनसे कितना कुछ सीखा है? आपको कैसे वो बेटर बनाते हैं? और नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जंगली पने से भी काफी कुछ सीखा जाता है. टू रिमेन लाइक अ चाइल्ड, टू एंजॉय. वो तो कूट कूट के भरा होता है. तो वो मैंने यशस्वी से ये सीखा है कि यार हर चीज में ऐसे थोड़ी ना ऑर्गेनाइज रहना है. लड़कियों की, कई लड़कों की भी होती है, बट मेजॉरिटी लड़कियों की आदत होती है ना कि ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, गंदा नहीं खिलाना, ये नहीं करना. तो विद यशस्वी आई स्टार्टेड बिकमिंग लीनियंट, इंजॉइंग लाइफ मोर. तो जंगली पने से तो मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी रहती है. बट उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ हिडन ट्रेट्स इन एवरी ह्यूमन बीइंग. So with Yashasvi, I have learned to be humble. Like he is very humble. He talks to people and wins them.
and not because he's doing it purposefully, इन द but फर्स्ट मीटिंग लाइक Yeah. मैं आपको बताता हूँ, जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मैं थोड़ा सा नर्वस था, तो मैं उनके पास गया एंड ही वाज लाइक, हाँ भाई क्या हाल है, कुछ मंगाना है, ऑर्डर करना है. वो ही हैज़ दैट स्माइल ऑलवेज. Yeah. वो एक स्माइल रहती है उनके चेहरे में कि हाँ. कुछ ऑर्डर करूँ, क्या खाएगा क्या पिएगा. वो वेरी फ्रेंडली, वेरी वेलकमिंग. तो वो Yeah. चीज़ है उनके अंदर. yeah. And then with him there is also very good thing, वो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते. Yeah. Even people whom we think have done wrong, if you talk to यशस्वी he'll be like, यार वो आदमी बहुत अच्छा है, हाँ. उसमें ये अच्छी क्वालिटी वैसे. सो दिस इज, आई थिंक दिस इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ. आई मीन आप कितना रोओगे कितनी चीज़ों को लेकर ना, अल्टीमेटली यू बिकम नेगेटिव. सो ही इज़ वेरी पॉजिटिव. ही टेक्स एवरी ह्यूमन बीइंग एज वेरी इंपॉर्टेंट. द वैल्यू ऑफ एवरी लाइफ, आई बिकॉज ही इज़ एन आर्टिस्ट, सो एवरीथिंग टचेज हिम. सो मैंने उससे सीखा है, क्योंकि पुलिस में आकर क्या ना सब कुछ ऐसा हो गया था, हाँ जल्दी जल्दी करो, ये चीज़ सॉल्व करो, ऐसा करो. तो थोड़ा सा मुझे एक उससे एस्केप मिला है, और मैंने ये सीखा है कि हर लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है. Deal with it very carefully. You know, you can touch people's emotion, you can touch people's I will say past things, you can motivate people. So please with human beings be very you know. तो ये चीज़ उससे सीखी है मैंने काफ़ी. और दूसरा, उसका अपने काम की तरफ जो प्यार है, इतना सच्चा प्यार मैंने किसी का नहीं देखा है. एंड हेंस ही इज़ एन आर्टिस्ट विद सो मच ऑफ प्योरिटी. मैंने व्हेन आई मेट हिम, आई गॉट इंट्रोड्यूस टू अ लॉट ऑफ मूवीज ऑफ अ लॉट ऑफ ग्रेट डायरेक्टर्स लाइक किरोस्तामी, सोरेंटिनो एंड अदर पीपल. देन आई सॉ देयर वर्क एंड आई रियलाइज कि इसमें कितनी प्योरिटी चाहिए होती है, इसको करने के लिए भी और इसको recognize करने के लिए भी. And then I saw Yashasvi's work also. Then I realized that, you know, because he is so pure and because he is not driven by money and commercial aspects and negativity and politics, that he is able to make art. And art has always been the foundation of big revolutions, from Renaissance to French Revolution. Art has been a weapon for great changes. So I keep telling him कि अपनी art से तुम दुनिया बदल सकते हो. So and he has been so humble. He never tells anyone कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई किस तरीके से देख रहा है. तो एक प्योर आर्टिस्ट है वो. And it is a pleasure to spend time with him always. So life is good. Life is good. Life is good. तो मैम अभी आप जब अपनी लाइफ को स्टार्टिंग से यहाँ तक देखते हो, तो डू यू फील, आर यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ? Because I think you should, but are you proud of yourself? I'm very proud of myself. Yes. I'm very proud of myself because I have also seen a lot of hardships in my childhood. And from my childhood till like 20 years of my life, it has been a lot of ups and downs, which my cousins also used to say कि तेरी तो परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं होती. But the whole element, you know, जैसे मैंने कहा मेरा belief भगवान में, मैं हमेशा सोचती थी my God will pull me out, I just have to work. So I have come out from every situation and I have won. And there are a lot of people who prepare, do not crack, are not successful. God has been great कि मैं उनमें से एक थी. So I am proud of how I worked, but I think I have more faith in you know Almighty, more faith in destiny, more faith in when you believe in something, because सब कुछ तो मेरी प्रिपरेशन नहीं है for sure. वो आप पे मुझे ऐसा लगता है जैसे हर कोई प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन एक समझ होती है ना, वो समझ आप में तब आती है जब आप एग्जाम क्रैक करने वाले होते हो. हमेशा नहीं आती वो समझ. किस समझ से आप पढ़ रहे हो, किस समझ से आप आंसर लिख रहे हो, किस समझ से आप चीज़ें कर रहे हो. मेहनत आप बराबर की कर सकते हो, पर वो एक समझ आती है आप पे एक टाइम पे. वो समझ से ही आप एग्जाम क्रैक करते हो. साथ ही आता है. यस. सो आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट आई थिंक समवेयर ये सब डेस्टिनी भी होती है. हाँ जी. या मैम आपकी रिटायरमेंट प्लान्स क्या है, आप सोचते हो उस बारे में? हाँ, मेरे रिटायरमेंट प्लान्स तो अभी से इम्प्लीमेंटेड हैं. आई हैव बीन एन आर्ट लवर. आई हैव बीन अ great lover of handloom and handicraft. I've done a lot of research in it and I still am into it. So and then I also really like enjoying time with kids who are not privileged to have good education. So मेरे तो बहुत सारे प्लान हैं. अभी भी हम लोग यही करते हैं, मैं और यशस्वी, we go and we meet kids everywhere and try to become a part of those orphanages where you know kids do not get a lot of things.
मैं जब हरिद्वार पोस्टेड थी तो हमने 100 बच्चों को पढ़ाया ऐसे, और उनको अलग अलग स्कूल्स और बोर्डिंग्स में डाला। फिर उसके बाद यहाँ आई एज ADC, तो अभी हम अपना घर को ऑलमोस्ट जाते हैं वहाँ पे हमेशा। तो दीज आर लाइक लिटिल स्टेप्स दैट वी आर डूइंग। एंड जहाँ तक बात है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की, सो आई कीप परस्यूइंग इट इवन नाउ पैशनेटली। एंड टुडे ओनली आई वाज टॉकिंग टू यशस्वी दैट आई हैव टू डू समथिंग इन दिस ऑल्सो. So I think when you get into services, your hobbies should always be alive. They become your retirement plan. So I have a lot. I write a lot because I think how I see bureaucracy and how I see my life. Those two things combined together make a very good book. So I keep writing also. You write, okay, nice. So I write a lot. Then I am also very much interested in philosophy and poetry. So I've just started all that. So retirement plan में मेरे ख्याल से ये hobbies ही रहेंगी सारी. Nice. So something related to kids, something related to handloom handicraft, all these things will be there. मैम बस एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मेरे जैसे चैनल का नाम है होपिंग फॉर, तो मैं सबसे लास्ट में पूछता हूँ कि अभी जिस भी स्टेज में हो अपनी लाइफ के, व्हाट आर यू होपिंग फॉर? That's a tough one. You never told me this is coming. Yeah, I am hoping for, I don't know, I keep hoping for something selfish also, like for myself. I hope that, I should always be a great decision maker in life, because आगे जाके बहुत सारे ऐसे मुकाम आएंगे जहाँ मुझे डिसीजन लेना होगा. किसी के लिए कभी कोई गलत डिसीजन ना आ जाए जाने अनजाने में, कभी जीवन में दिल में कोई करप्ट वैल्यूज कभी ना आए. दैट इज मतलब इवॉल्विंग एंड बिकमिंग a very good decision maker is what I hope for myself, but that's very selfish. But I hope for an environment where people realize that how important human life is. What is happening is that people, when I see the morals of the society, they are in some or the other form coming down, and then from society only we get into the government services, and then we see the value of the system is coming down. So I think as a whole, when the society, it goes back to its roots, its fundamentals, which is now even happening also in a lot of things, from eating to the use of polythings and other things, and how we treat the environment and animals. There are a lot of movements also going on now. So I hope that all these movements do come up, and I hope that human civilization becomes a better and a greater civilization, and the moral systems, it becomes stronger, combined with all the AI and all the social media and everything and the technology that we have. So I have a lot of hope with the society, what it is giving to the world. So that ways I hope for a future where people love each other, where we value each other a lot, where we can without being selfish help each other. So those little changes which are which everybody knows, it's common sense. So I hope common sense to become common. देखो मैम, मैंने इसीलिए नहीं बताया आपको, it came from the heart now. It came from heart. Okay, so thank you so much ma'am, thank you for coming to our podcast. मैं बहुत नर्वस था पहले आपसे बात करते हुए, बट वो आप में ना एक वो चिल, वो फन वाइब है, तो दैट रियली हेल्प्ड मी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि वी हैव अ ऑफिसर लाइक यू. We feel very safe and very secured when we have someone like you. So thank you so much. और please बिल्कुल मत बदलना. You're doing great. Thank you so much for coming. And आपका experience कैसा रहा? आपको कैसा लगा यहाँ? First of all, thank you so much for not only inviting me, but also for starting something like this. Because I was speaking to my husband and telling him that podcasts are very good things. If you want to just drive a car, you can listen to some conversation and understand few topics in a candid way. So I really like this medium. So somebody from Dehradun starting it, we are very proud of you that you have started all this, and with a small team, but a very beautiful team. So our support is always there. Sure. And as far as this channel is concerned, I think it will really grow. And so much, just like you said, don't change. I will also say don't change. And let's hope for bigger heights for the whole podcast here. And in future also,
whenever there is anything required, just let me know. And thank you so much for inviting me here. The questions that you threw, I was not expecting all those questions, let me tell you, because these are very deep research questions. But then it was fun to answer, because I think for the first time I have also thought of it and just spoken about it, and I have become clearer about these questions now. So I think in one way, thank you for the conversation. So thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you for coming. Thank Yeah, you. Thank you.